अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। बटन बटन के दूसरे पार्ट में वेलकम अगेन। That's natural, Mr. Steward said. Not that I believe a word of what you told us. Oh, it's quite authentic, Mr. Steward answered. Well, whatever Norma swallowed. When you said someone in the world would die, what did you mean? Exactly that, he answered. It could be anyone. All we guarantee is that you don't know them. And, of course, that you wouldn't have to watch them die. For $50,000, Norma said. That is correct. She made a scoffing sound. That's crazy. Nonetheless, that is the proposition, too, Mr. Steward said. Would you like me to return the button unit? Norma stiffened. Certainly not. She hung up angrily. The package was lying by the front door. Norma saw it as she left the elevator. Well, of all the nerve, she thought. She glared at the carton as she unlocked the door. I just won't take it in, she thought. She went inside and started dinner. ये फितरी है, मिस्टर स्टीवार्ड ने कहा। ऐसा नहीं है कि जो कुछ आपने हमें बताया है उसके एक लफ्ज़ पर भी हमें यकीन है। ओह, ये काफ़ी मुस्तनद है, मिस्टर स्टीवार्ड ने जवाब दिया। ठीक है, जो भी, नॉर्मा ने बात को निगला। जब तुमने कहा कि दुनिया में कोई मर जाएगा तो तुम्हारा क्या मतलब था? बिल्कुल वही, उसने जवाब दिया। ये कोई भी हो सकता है। हम सिर्फ इस बात की ज़मानत देते हैं कि आप उन्हें नहीं जानते, और यकीनन कि आपको उन्हें मरते नहीं देखना पड़ेगा। $50,000 में, नॉर्मा ने कहा। यह दुरुस्त है। उसने तंज़िया आवाज़ निकाली। ये पागल है। बहरहाल ये तजवीज़ है, मिस्टर स्टीवार्ड ने कहा। क्या आप चाहेंगे कि मैं बटन यूनिट वापस कर दूं? नॉर्मा ने सख्ती से कहा। यकीनन नहीं। उसने गुस्से से मुंह लटका लिया। पैकेज सामने के दरवाजे के पास पड़ा था। नॉर्मा ने उसे देखा। वो लिफ्ट से निकल गई। ठीक है, तमाम असाबी तौर पर, उसने सोचा। उसने दरवाज़ा खोलते ही कार्टन की तरफ देखा। मैं इसे अंदर नहीं ले जाऊंगी, उसने सोचा। वो अंदर गई और रात का खाना शुरू कर दिया। Later, she went into the front hall. Opening the door, she picked up the package and carried it into the kitchen, leaving it on the table. She sat in the living room, looking out the window. After a while, she went back into the kitchen to turn the cutlets in the broiler. She put the package in a bottom cabinet. She'd throw it out in the morning. Maybe some eccentric millionaire is playing games with people, she said. Arthur looked up from his dinner. I don't understand you. What does that mean? Let it go, he told her. Norma ate in silence. Suddenly, she put her fork down. Suppose it's a genuine offer, she said. Arthur stared at her. Suppose it's a genuine offer? All right, suppose it is? He looked incredulous. What would you like to do? Get the button back and push it? Murder someone? बाद में वो सामने वाले हॉल में चली गई। दरवाज़ा खोलकर उसने पैकेज उठाया और मेज़ पर रखकर किचन में ले गई। वो कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो ब्रायलर में कटलेट्स फेरने के लिए वापस किचन में चली गई। उसने पैकेज को नीचे की अलमारी में डाल दिया। वो उसे सुबह बाहर फेंक देगी। हो सकता है कि कोई संकी करोड़पति लोगों के साथ गेम खेल रहा हो, उसने कहा। आर्थर ने अपने खाने से ऊपर देखा। मैं आपकी बात नहीं समझा। इसका क्या मतलब है? जाने दो, उसने उसे बताया। नॉर्मा ने खामोशी से खाना खाया। अचानक उसने अपना कांटा नीचे रखा।
फ़र्ज़ करें कि ये एक हकीकी पेशकश है, उसने कहा। आर्थर ने उसे घूरते हुए कहा, फ़र्ज़ करें कि ये है एक हकीकी पेशकश। ठीक है, फ़र्ज़ करें। वह नाकाबिले यकीन लग रहा था। आप क्या करना चाहेंगी? बटन वापस हासिल करें और उसे दबाएं? किसी का कत्ल? Norma looked disgusted. Murder. How would you define it? If you don't even know the person? Norma said. Arthur looked astounded. Are you saying what I think you are? If it's some old Chinese peasant 10,000 miles away? Some diseased native in the Congo? How about a baby boy in Pennsylvania? Arthur countered. Some beautiful little girl on the next block? Now you're loading things. The point is, Norma, he continued, what's the difference whom you kill? It's still murder. The point is, Norma broke in, if it's someone you've never seen in your life and never will see, someone whose death you don't even have to know about, you still wouldn't push the button? नॉर्मा नागवार लग रही थी। कत्ल? आप इसकी तारीफ कैसे करेंगे? अगर आप इस शख्स को नहीं जानते तो, नॉर्मा ने कहा। आर्थर ने चौंक कर देखा। क्या तुम वही कह रही हो जो मैं समझता हूँ कि तुम हो? अगर ये कोई बूढ़ा चीनी किसान 10,000 मील दूर है, कांगो में कुछ बीमार मकामी हैं, पेंसिल्वानिया में एक बच्चे के बारे में क्या ख्याल है? आर्थर ने जवाब दिया, अगले ब्लॉक पर कोई खूबसूरत लड़की। अब आप चीज़ें लोड कर रहे हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अब आप बात को बढ़ा रहे हैं। बात ये है, नॉर्मा, उसने जारी रखी अपनी बात, क्या फ़र्क है किसे तुम मारते हो? ये अब भी कत्ल है। बात ये है कि नॉर्मा ने ब्रेक किया, बात को काटा, यानी अगर ये कोई ऐसा शख्स है जिसे आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा और ना कभी नज़र आएगा, कोई ऐसा शख्स जिसकी मौत के बारे में आपको जानना भी नहीं है, तब भी आप बटन नहीं दबाएंगे? Arthur stared at her, appalled. You mean you would? $50,000, Arthur. What has the amount dash? $50,000, Arthur, Norma interrupted. A chance to take. That trip to Europe we've always talked about. Norma, no. A chance to buy that cottage on the island. Norma, no. His face was white. She shuddered. All right, take it easy, she said. Why are you getting so upset? It's only talk. After dinner, Arthur went into the living room. Before he left the table, he said, I'd rather not discuss it anymore, if you don't mind. Norma shrugged. Fine with me. आर्थर ने घबराकर उसे देखा। आपका मतलब है कि आप दबा देंगी? $50,000, आर्थर। क्या रकम है? $50,000, आर्थर, नॉर्मा ने रोका। यूरोप के उस सफ़र को ले जाने का एक मौका जिसके बारे में हमने हमेशा बात की है, नॉर्मा, नहीं। जज़ीरे पर उस कॉटेज को ख़रीदने का मौका, नॉर्मा, नहीं। उसका चेहरा सफ़ेद था, यानी आर्थर कह रहा है नहीं, और नॉर्मा उसे कन्विंस कर रही है। वो कांप गई। ठीक है, आराम से ले लो, उसने कहा। मतलब अब आर्थर का रद्द-ए-अमल देख के वो उसे बहुत जैसे धचका लग रहा हो, नॉर्मा की ये बातें सुनकर, इंतहा दर्जे की कन्विंसिंग सुनकर। उसने कहा, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? सिर्फ बातें होती हैं। रात के खाने के बाद आर्थर कमरे में चला गया। मेज़ से निकलने से पहले उसने कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं इस पर मज़ीद बहस नहीं करूँगा। नॉर्मा ने कंधे उचकाए, मेरे साथ ठीक है। She got up earlier than usual to make pancakes, eggs, and bacon for Arthur's breakfast. What's the occasion? He asked with a smile. No occasion. Norma looked offended.
I wanted to do it, that's all. Good, he said. I'm glad you did. She refilled his cup. Wanted to show you I'm not dash, she shrugged. Not what? Selfish. Did I say you were? Well, she gestured vaguely dash, last night. Arthur didn't speak. All that talk about the button, Norma said. I think you misunderstood me. In what way? His voice was guarded. I think you felt, she gestured again dash, that I was only thinking of myself. वो आर्थर के नाश्ते में पैनकेक्स, अंडे और बेकन बनाने के लिए मामूल से पहले उठी। क्या मौका है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। कोई मौका नहीं, नॉर्मा ने गुस्से से देखा। मैं ये करना चाहता था, बस। अच्छा, उसने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा किया। उसने अपना कप दोबारा भरा। मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं नहीं हूँ। उसने कंधे उचकाए। क्या नहीं? खुदगर्ज। क्या मैंने कहा था कि तुम खुदगर्ज थीं? अच्छा, उसने मबहूम अंदाज में इशारा किया। गुज़श्ता रात, यानी पिछली रात की बहस की तरफ इशारा करके। नॉर्मा कह रही है कि जिस अंदाज से आपने रिएक्ट किया उससे ये साबित हो रहा था कि जैसे मैं कोई खुदगर्ज हूँ। गुज़श्ता रात, आर्थर बोला। नहीं, बटन के बारे में वो सारी बातें। नॉर्मा ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुमने मुझे गलत समझा। किस तरह? उसकी आवाज़ पर पुरहिफाजत थी। मुझे लगता है कि आपने महसूस किया। उसने दोबारा इशारा किया कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। Oh. I wasn't. Norma dash. Well, I wasn't. When I talked about Europe, a cottage on the island dash. Norma, why are we getting so involved in this? I'm not involved at all. She drew in a shaking breath. I'm simply trying to indicate that dash. What? That I'd like for us to go to Europe. Like for us to have a cottage on the island. Like for us to have a nicer apartment, nicer furniture, nicer clothes, a car. Like for us to finally have a baby, for that matter. Norma, we will, he said. When? He stared at her in dismay. Norma dash. When? ओह, मैं नहीं थी, नॉर्मा। ठीक है, मैं नहीं थी जब मैंने यूरोप के बारे में बात की। जजीरे पर एक कॉटेज। नॉर्मा, हम इसमें इतना क्यों मुलव्वस हो रहे हैं? मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ। उसने लरजते हुए सांस खींची। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या मैं चाहती हूँ कि हम यूरोप जाएं। हमारे लिए जजीरे पर एक कॉटेज होना पसंद है, जैसा कि हमारे लिए एक अच्छा अपार्टमेंट, अच्छा फर्नीचर, अच्छे कपड़े, एक कार हो, जैसा कि आखिरकार हमारे यहाँ बच्चा पैदा करना है। नॉर्मा, हम करेंगे, उसने कहा। कब? उसने मायूसी से उसे देखा। नॉर्मा, कब? Are you, he seemed to draw back slightly dash, are you really saying dash? I'm saying that they're probably doing it for some research project. She cut him off. That they want to know what average people would do under such a circumstance. That they're just saying someone would die. In order to study reactions, see if there'd be guilt, anxiety, whatever. You don't think they'd kill somebody, do you? Arthur didn't answer. She saw his hands trembling. After a while, he got up and left. When he'd gone to work, Norma remained at the table, staring into her coffee. I'm going to be late, she thought. She shrugged. What difference did it make? She should be home anyway, not working in an office. क्या तुम? वो कदरे पीछे हटता नजर आया। क्या तुम वाकई कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि वो शायद किसी तहकीकी मंसूबे के लिए कर रहे हैं। उसने उसे काट दिया।
क्या वो जानना चाहते हैं कि क्या औस लोग ऐसी हालत में करेंगे? कि वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोई मर जाएगा रद्द-ए-अमल का मुताला करने के लिए? देखें कि क्या जुर्म, इस तरह अब कुछ भी होगा? तुम्हें नहीं लगता कि वो किसी को मार डालेंगे? क्या तुम? आर्थर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने इसके हाथ कांपते हुए देखे। थोड़ी देर बाद वो उठा और चला गया। जब वो काम पर चला गया तो नॉर्मा घर पर ही रही। टेबल उसकी कॉफी में घूरते हुए, मुझे देर हो जाएगी, उसने सोचा। उसने कंधे उचकाए। इससे क्या फ़र्क पड़ा? उसे घर होना चाहिए, वैसे भी दफ्तर में काम नहीं करना चाहिए। जब वो बर्तन सजा रही थी, वो अचानक मुड़ी, अपने हाथ खुश्क किए और नीचे की अलमारी से पैकेज निकाल लिया। उसे खोलकर उसने बटन यूनिट मेज़ पर रख दिया। लिफाफे से चाबी निकालकर शीशे के गुंबद को हटाने से पहले वो काफ़ी देर तक उसे देखती रही। उसने बटन की तरफ देखा। कितना मुज़हिका-ख़ेज़, उसने सोचा, एक बेमानी बटन पर ये सब हंगामा। Reaching out, she pressed it down. For us, she thought angrily. She shuddered. Was it happening? A chill of horror swept across her. In a moment, it had passed. She made a contemptuous noise. Ridiculous, she thought. To get so worked up over nothing. She threw the button unit, dome, and key into the wastebasket and hurried to dress for work. She had just turned over the supper steaks when the telephone rang. She picked up the receiver. Hello? Mrs. Lewis? Yes? This is the Lenox Hill Hospital. बाहर पहुंचकर उसने उसे दबा दिया। हमारे लिए। उसने गुस्से से सोचा। वो कांप गई। क्या ये हो रहा था? खौफ की एक सर्द लहर उसके अंदर छा गई। एक लम्हे में वो गुजर चुका था। उसने हकारत अमेज़ आवाज़ निकाली, मुज़हिका-ख़ेज़। उसने सोचा, हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं, पर काम किया। उसने बटन यूनिट, गुंबद और चाबी कचरे की टोकरी में फेंक दी और जल्दी से काम के लिए कपड़े पहनने लगी। वो अभी रात के खाने के स्टेक को पलट ही रही थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया। हेलो, मिसेस लेविस? जी हाँ, ये लेनॉक्स हिल अस्पताल है। She felt unreal as the voice informed her of the subway accident. The shoving crowd, Arthur pushed from the platform in front of the train. She was conscious of shaking her head but couldn't stop. As she hung up, she remembered Arthur's life insurance policy for $25,000, with double indemnity for. No. She couldn't seem to breathe. She struggled to her feet and walked into the kitchen numbly. Something cold pressed at her skull as she removed the button unit from the wastebasket. There were no nails or screws visible. She couldn't see how it was put together. Abruptly, she began to smash it on the sink edge, pounding it harder and harder, until the wood split. वो गैर हकीकी महसूस कर रही थी जब आवाज़ ने उसे सबवे हादसे की इत्तला दी। हलचल मचाने वाली भीड़। आर्थर ने प्लेटफॉर्म से ट्रेन के आगे धकेल दिया। वो सर हिलाने के लिए होश में थी, लेकिन रुक नहीं सकी। जैसे ही उसने फ़ोन बंद किया, उसे आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी $25,000 याद आई, जिसके लिए दोहरा मुआवजा था, यानी डबल होके $50,000। नहीं, वो सांस नहीं ले पा रही थी। वो अपने कदमों से लड़ती हुई बेहिस्सी से किचन में चली गई। जब उसने कचरे की टोकरी से बटन यूनिट हटाया तो उसकी खोपड़ी पर कुछ ठंडा दबा हुआ था। कोई कील या पेच नज़र नहीं आ रहा था। वो नहीं देख सकती थी कि उसे कैसे मिलाया गया है। अचानक उसने उसे सिंक के किनारे पर तोड़ना शुरू कर दिया। उसे ज़ोर-ज़ोर से मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि लकड़ी अलग हो गई। She pulled the sides apart, cutting her fingers without noticing. There were no transistors in the box, no wires or tubes. The box was empty. She whirled with a gasp as the telephone rang. Stumbling into the living room, she picked up the receiver. Mrs. Lewis. It wasn't her voice shrieking, so it couldn't be.
You said I wouldn't know the one that died. My dear lady, Mr. Stewart said. Do you really think you knew your husband? Tilda. उसने बगैर देखे अपनी उंगलियां काटते हुए अतराफ को अलग कर लिया। डब्बे में ना ट्रांजिस्टर थे, ना तारें और ना नलियां। वो बॉक्स खाली था। टेलीफोन की घंटी बजते ही वो हाँफते हुए घूम गई। कमरे में ठोकर खाकर उसने रिसीवर उठाया। मिसेस लेविस, ये उसकी आवाज़ नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता। आपने कहा था कि मैं मरने वाले को नहीं जानती होंगी। मेरी प्यारी खातून, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, क्या आप वाकई सोचती हैं कि आप अपने शौहर को जानती हैं? हैप्पी लर्निंग।